Hello students, welcome to RDS online classes. I am Shabana and I am taking your English class. Today we will do the fourth poem of 12th class and the name of a poem is The Seven Ages of Man. Before starting with the poem, write down today's thought first to motivate us. The best sleeping pill is a clear conscience. Our thought of the day is the best sleeping pill is a clear conscience. Now, coming back to the poem, The Seven Ages of a Man is written by William Shakespeare, who was a renowned playwright, dramatist, and a poet also. So, in this poem, The Seven Ages of a Man, Shakespeare, he called this world a stage where men and women simply play their parts. He compares the life of man to a drama of 7 acts. He calls men and women actors on the stage of the world, playing part after part in drama. In his lifetime, man plays 7 different roles on the stage of this world from infancy to old age. So in this poem, the poet, he is describing all the stages, all the acts which a man will play from his birth till his death. For the poet, he says that this earth, it is a stage and we all humans are born here to play some part. We all are given a role and we are playing our parts. We all have our own entrances and our exits. We are here for a time period. So, without wasting any time, let us start with the poem. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. So, Shakespeare, what is he saying is कि all the world's a stage, कि जो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है. जितने भी यहाँ पे मनुष्य जीव मतलब पैदा हुए हैं, जो भी आदमी और औरतें हैं, वो सब यहाँ पे क्या है, प्लेयर्स हैं. सबका एक समय है, वो एक समय पर बाहर जाते हैं, एक समय पर वो एंट्री लेते हैं और एक समय पर फिर वो उनकी जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और वो बाहर चले जाते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक समय पर है ना, एक उसको टाइम दिया गया स्टेज पे, उसके अंदर वो बहुत सारे जो रोल्स है वो प्ले कर लेता है. हिज एक्ट्स बीइंग 7 ages, और वो एक 7 ages 7 रोल्स जो है वो प्ले करके जाता है. नाउ व्हाट इज एट द फर्स्ट स्टेज, क्या कर रहा है एक जो मनुष्य है वो. एट द फर्स्ट स्टेज द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्केचल and shining morning face, creeping like snail, unwilling to go to school, and then the lover, sighing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता है ना, अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो एक छोटा सा बच्चा है. तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज में क्या है, ही इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी. एज अ चाइल्ड ही इज़ हेल्पलेस क्रीचर, ही कीप्स ऑन क्राइंग इन द आर्म्स ऑफ द नर्स फॉर नो रीज़न और द अदर. ठीक है, द स्टेज ऑफ मैंस लाइफ अपेयर एज अ चाइल्ड. देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसी स्टेज के अंदर वो क्या कर रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल with a bag hanging from his shoulder. He goes to school creeping like a snail. He marches to school reluctantly. अभी क्या हुआ है, देन लाइक ये फर्स्ट स्टेज के अंदर वो एक इन्फेंट है, जब वो एक नर्स की गोदी के अंदर रो रहा है, वो हेल्पलेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता. सेकंड में वो एक स्कूल बॉय है, जहाँ पे उसके पीठ पर एक भारी सा स्कूल बैग टंगा हुआ है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली, और वो बहुत धीरे धीरे कैसे एक स्नेल की तरह जो है वो स्कूल की तरफ जो है वो बढ़ रहा है ना. एवरीवन ऑलमोस्ट इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल. एंड देन द लवर, और फिर उसके बाद में जो उसकी थर्ड स्टेज क्या है, वो क्या है, स्टेज ऑफ अ लवर. हर है ना, आफ्टर स्कूल ईयर व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और व्हेन यू आर इन अर्ली डेज ऑफ योर कॉलेज, everyone you fall in love, which we may call infatuation, and that is a very different kind of stage. Like you want to do everything for your loved one, you want to do everything, so you are always sighing like a furnace. तो मैं एकदम, मैं हमेशा भट्टी की तरह जो है, कभी उदास रहते हो, कभी
अपने लवर के लिए कुछ करना चाहते हो, वी विल वो फिर आप उसके लिए सॉन्ग्स लिखते हो, उसकी आईब्रोज के लिए, अपने लवर के लिए, और आप उसकी याद में हमेशा खोए रहते हो. सो दिस इज़ योर third stage. And then we come to the fourth stage. Now the fourth stage is, then a soldier full of strange oaths and bearded like the bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. So in the fourth stage of his life, man becomes a foul-mouthed soldier who has learned queer words at this stage. अब क्या उसने थोड़ी सी इस एज के अंदर वहाँ पे वो गाली गलौज सीख लेता है, वो अपने वर्ड्स पे उसका जो कंट्रोल नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव आ जाता है, और वो अपनी जो मर्यादा है बोलने की, अपने शब्दों की जो मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं भूल जाता है. He takes many oaths regarding his motherland country at this stage. और यहाँ पे मतलब उसको लगता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है, वो सब कुछ कर देगा, और वो बहुत अजीब अजीब सी कस्में खाता है, वादे करता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा. ठीक है. और ये जो फोर्थ स्टेज है, इन दिस स्टेज ओनली अ मैन ही इज़ फाउल माउथ सोल्जर हु इज़ इमोशनल एंड जेलस. ही क्वारल्स विद अदर्स फॉर हिज ऑनर एंड ग्रेस. ही ट्राइज टू अटेन अ फॉर्मिडेबल लुक विद अ बियर्ड. अब उसमें क्या करना, उसने एक बियर्ड लगा. बियर्ड कैसी है? पार्ड. पार्ड कौन है यहाँ पे? लेपर्ड जैसी उसने एक बियर्ड होती है, और वो किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देख के जेलस करता है, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है. सीकिंग अ बबल रेपुटेशन, है ना, एक झूठी उसकी जो रेपुटेशन उसने बनाई है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि ही इज़ इवन इफ ही इज़ इन कैनन्स माउथ. कैनन्स माउथ क्या हो गया? तोप. कैनन क्या होती है? तोप. अगर वो तोप के मुंह में भी है, तोप के भी आगे खड़ा है, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन के बारे में कुछ नहीं, चाहे उस रेपुटेशन, वो एक हवाई रेपुटेशन है, उसका कुछ भी नहीं बंटना है, लेकिन फिर भी ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर हिज रेप्यूटेशन. And then the justice in fair round belly, with a good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Now in the fifth stage, what is he doing? In the fifth stage of his life, man becomes a judge. He becomes nature, mature and experienced in his thoughts. He wishes to grab wealth by foul and fair means, and he becomes fat. At the fifth stage, he becomes mature and experienced in his thoughts. He wishes to grab wealth, and his eyes become severe, but his so व्हाट इज़ हियर इज़ कि जब वो एक फिफ्थ स्टेज के अंदर आता है तो वो एक जस्टिस बन जाता है. जस्टिस क्यों बन जाता है? क्योंकि अब वो मेच्योर है, वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो सबको, कोई भी जब कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे वो अपनी एक जो राय है वो दे देगा. जैसे कि जज जो है वो अपना स्टेटमेंट देता है, उसी तरह से जो एक फिफ्थ स्टेज के अंदर एक आदमी है, वो हर जगह, मतलब उसके पास हर उस समस्या का, जैसे कहते हैं हम, समाधान है, वो रहेगा. और इस एज के अंदर आने के बाद में वो क्या करता है कि उसके पास उसका जो he just wants to earn money, है ना. फोर्थ स्टेज में क्या होता है? he just wanted to have a what? A bubble reputation. Now in fifth stage he want to just have money by hook or by trick, by any methods. He wants just to have money. तो उसकी वजह से क्या हुआ है? क्योंकि उसके पास he wants to take bribe, तो उसकी वजह से उसका जो पेट है वो बाहर निकल आया, एक तोंद उसके निकल आई है, जिसके अंदर जो ये कह रहा है, जो ऑथर हमें कह रहा है कि विद गुड केपन लाइन. केपन लाइन का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो चिकन है, और जो ब्राइब कर करके उसने लोगों से पैसे लेके उसने चिकन मटन जो खाया है, वो उसके पेट के अंदर जो भरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो बेली है वो बाहर निकल आई है. उसकी जो आँख है वो स्वेयर है. बियर्ड के अंदर उसने एक फॉर्मल कट लिया है. उसको वॉइस सॉज, उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता है, वो मॉडर्न बातें भी कर लेता है साथ के अंदर. वो एम्बिशियस है. ही इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स. ठीक है. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और उसने अपना ये जो पार्ट है यहाँ तक प्ले करा. अब सिक्स स्टेज के अंदर क्या होता है? इन द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द स्लिपर्ड पैंटलून. सिक्स स्टेज के अंदर जो आदमी है, ही स्लिपर्स इनटू अ slippered pantaloon. So in the sixth stage of life, man grows old. He looks quite ridiculous in his movements. His shoes become wide for his weight. This shows that the man becomes too old. अब पैंटलून क्या है? ये एक कार्टून कैरेक्टर, एक्चुअली में पैंटलून एक कार्टून कैरेक्टर है जो बहुत ही फ़नी था देखने में. उसको है ना, इल फिटेड उसकी पैंट्स थी, इल फिटेड उसके जो शूज़ थे. तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है, एक कार्टून कैरेक्टर टाइप हो जाता है आदमी अपने सिक्स्थ स्टेज के अंदर.
विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जो उसका चश्मा है वो उसके नाक के ऊपर आ जाता है, एंड पाउच ऑन हिज साइड्स, उसके जो गाल हैं वो लटक जाते हैं ना, तो उनके जो दो साइड्स में उसके पाउचेस बन जाते हैं. हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक. अब उसके जो पैंट है वो बहुत ही ध्यान से, जो उसकी जवानी की जो पैंट्स हैं वो उसने बहुत संभाल के उसने रख रखे थे, और लेकिन अब जो है वो उसके पैरों के लिए बहुत ढीले ढाले हो गए हैं, है ना. एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी इतने दिन जो एकदम कड़ाके की एकदम मर्दाना जो वो वॉइस थी वो वापस एक बच्चे की तरह, एक ट्रेबल जिसके अंदर से एक सीटी बजने की आवाज़ आती है ना, वैसी उसके अंदर जो एक आवाज़ वापस उसके अंदर शुरू हो गई है, जो उसके अंदर विसल की आवाज़ आती है ना. उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी उसकी जो आवाज़ है आती है. सो द मैन ही ग्रोज ओल्ड इन द 6th एज ऑफ हिज लाइफ एंड wears glasses because his eyesight gets weak. His voice suffers a change and it becomes a shrill and quivering whistle like voice. Now we come to the last scene of all that ends like strange eventful history is second childishness and mere oblivion. सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग. ठीक है. अब जो लास्ट सीन जो हमारी लाइफ का है जब वो आता है तो उसमें क्या हो रहा है. द लास्ट सीन ऑफ मैन्स लाइफ इज दैट इज एक्सट्रीम ओल्ड एज एंड इज़ द एज व्हेन अ मैन अटेन्स सेकंड चाइल्ड. मतलब आदमी इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो सेकंड चाइल्ड, वो दोबारा बच्चा बन जाता है ना. बच्चा जो होता है वो हमने जब फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि ही इज़ अनेबल, ही इज़ हेल्पलेस, ही कैन नॉट डू एनीथिंग. सो इन द सेकंड चाइल्डिशनेस व्हेन अ मैन बिकम्स टू ओल्ड, टू वीक, टू फ्रेजाइल, इवन एट दैट स्टेज ही कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना. सो दैट एज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड चाइल्डिशनेस. एट दिस स्टेज मैन बिकम्स लाइक अ चाइल्ड वंस अगेन. ही बिकम्स टूथलेस. छोटा बच्चा तो उसके दांत नहीं होते, बूढ़े आदमी के भी दांत नहीं होते. हिज साइट इज वीकेंड. छोटे बच्चे की एक लिमिट आई साइट होती है, वो कुछ ही दूरी तक देख सकता है, वैसे ही एक बूढ़े आदमी की हो जाती है. एंड ही इज डिप्राइव्ड ऑफ टेस्ट, और उसको टेस्ट का भी ज़्यादा पता नहीं चलता है. सो द 7th stage, that is the age of second childishness, is the last stage of a man's life, and at this stage man turns into a child once again. He seems to forget everything and also become toothless. Now here sans means without. So second childishness के अंदर वो क्या है, ठीक है. He is sans teeth, बिना दांत के, sans eyes, बिना आँखों के, sans taste भी नहीं है, and sans everything. He is without everything. So this is a poem. I hope all of you understood this poem. Have a good day.